Yeah, so hi friends. In the last video, we studied about the feudalism, the history of feudalism in India. And due to that feudalism, what we see various new kingdoms coming into view. So they come into picture. काफ़ी सारी kingdoms आप नहीं देखते हैं both in North India and in South India. Okay, so it is the period between 650 and 750 AD, the period after which the Gupta Empire completely declined. Okay, so Gupta Empire had declined. There was a completely new situation that arose in North India and in South India. There were some new feudatories that were coming into power. So what we see in North India, okay, so we saw Vardhana dynasty or Pushyabuti dynasty. You must be knowing it from the Harsha's dynasty, the last great Hindu king. Okay, so iski emergence hoti hai. Then we have Mokhriyas, then we have Maitrikas. All these are feuds. These were the feuds, somehow related to the Guptas. Okay, now when we come to the South India, we will take the South India first. The South India, the condition was a bit different. Okay, the Cholas has now disappeared. Okay, we don't see the Sangam era, as I can say, Sangam era Cholas, Cheras there. What we see Pallavas, Chalukyas and Pandyas coming into power. Okay, so we will be taking the South India kingdoms first. Okay, so first we will be taking about the South Indian kingdoms and we will be doing the Pallavas first. Okay, सो पलवास ओके यहाँ पे पलवास की ओरिजिन के ऊपर दो थ्योरीज हैं. देर आर टू थ्योरीज. इनके ओरिजिन अभी तक क्लियर नहीं है. देर आर टू थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ पलवास. पहली थ्योरी ये कहती है कि दे हैड ए फॉरेन ओरिजिन, जैसा वी स्टडीड इन द एंशिएंट दैट दे वर इंडो पार्थियन साकास. ओके, जो फॉरेनर्स थे एंड some say they are offshoots of those Parthians, and some say that they belong to the Vatakas. Okay, who are Vakatas? It was a Brahmin dynasty. Okay, in the Deccan. So एक theory ये कहती है कि they are of the foreign origin. Pallavas were of foreign origin. Second theory ये कहती है कि they were actually a local tribe from Todai Mandalam in Tamil Nadu. They were actually a tribe, local tribes, जिन्होंने पलवा बनाई. ओके, एंड दीज वेर एक्चुअली फ्यूड्स ऑफ सतावनास. ओके, सो ये दूसरी थ्योरी आ जाती है कि दीज वेर एक्चुअली द फ्यूड्स ऑफ सतावनास. ओके, एंड इट वाज जस्ट सम लोकल ट्राइब, इट वाज नॉट एनी फॉरेनर ट्राइब. ओके, तो किस जगह के थे? टोडा मंडलम के थे, तमिलनाडु में, एंड द पलवास केम इनटू पावर. सो व्हाट वाज द एक्सटेंट टू विच दीज पलवास रूल्ड? Okay, Palwas ruled from the northern part of the Andhra Pradesh to river Kaveri in the south. ये extent आप देख लीजिए. We will have the map also. Map पे भी हम देखिए. Look. This is the Palwas with Kanchipuram as their capital. Okay, so northmost Andhra to river Kaveri here in the south. Kavira के इस side, जो दूसरे बैंक के दूसरे side था, they were Pandyas. Remember this thing. Okay, so Kaveri was divided then. Okay. So they were in frequent war with these. Okay. So as I said, Pallavas had their capital in Kanchipuram, and it is said that it was founded by Simha Vishnu. Okay, तो Simha Vishnu को इसका founder बोला जाता है. There are many kings. This is the list of the king within the chronological order. Okay, but most important would be Mahendravarman, Narasimhavarman. Okay, so these are the two most important kings that we'll be studying. Okay, so as we discussed, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. they have the signs also. Okay, इनके रॉयल साइंस भी थे, like we have tiger for cholas. तो पलवा का जो साइन था, it was simha, that is this loin, and nandi, the bull, but mostly this simha was used. Okay, so different kings used differently. Like we know that Narasimhavarman used the loin, and Nandi Varman he used it. He used the Nandi. Okay, Nandi Varman used the Nandi, the bull. Okay,
सो एज ए सेड कि फाउंड किया था इससे सिमा विष्णु ने. बट we what we will be discussing in this video is about the important kings. Important kings को हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट किंग वॉज द महेंद्र वर्मन. इंपॉर्टेंट किंग वॉज महेंद्र वर्मन. अब जब महेंद्र वर्मन यहाँ पे साउथ पे रूल कर रहे थे पलवास में, इन द नॉर्थ हर्ष वॉज रूलिंग. ओके, ये चीज़ याद रखिएगा. सो व्हेन he was ruling in the south, Mahendra Varman was using the Pallavas. Actually in the north it was Harsha. Okay, and there was Pulasekan. Pulasekan II, who was a Chalukyan ruler, an important Chalukyan ruler. So Mahendra Varman was defeated by both Pulasekan. Okay, he was defeated by Pulasekan, and Harsha was also defeated by Pulasekan. Pulasekan was also called as the लॉर्ड ऑफ द साउथ. ओके, ये चीज़ याद रखिएगा. इट इज सेड दैट महेंद्र वर्मन इनिशियली वॉज अ जैन, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं शैविज्म में. इट इज सेड दैट ही गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सेंट सेवा सेंट अपार. ओके, एंड ही रोट दिस बुक मता विलासा परहंसा and Vichitra. So this he was himself, Mahendra Varman was himself a very learned man. Okay, लिखते भी थे. So दो बुक्स इन्होंने लिखी है, याद रखिएगा, मता विसाला प्रहसना and Vichitra. This Mata Vilasa Paramahansana is drama related to the drinking habit of drinking. It's a drama. Okay, remember these two facts are about him. It is said कि महेंद्र वर्मन ने ही जो महाबलीपुरम केव्स है, और यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड द महाबलीपुरम बिकॉज मीटिंग ऑफ दिस नरेंद्र मोदी एंड दिस चाइनीज काउंटर पार्ट वहाँ पर हुई थी. सो इट इज सेड दैट द महेंद्र वर्मन was the one who initiated the construction of cave temples at Mahabalipuram. He was the one, and as I said, he was a well-learned person. He was a great patron of letters, architecture, and he constructed a lighthouse in Mahabalipuram. Okay, याद रखिएगा एक फैक्ट है, correct constructed. So actually जो जितनी भी construction start हुई वो सब की सब इनके अंदर महेंद्र वर्मन मन के स्टार्ट शुरू हुई. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कांची यूनिवर्सिटी जहाँ पर वेदास, बुद्धिज्म, जैनिज्म, पेंटिंग्स, म्यूजिक और डांस पढ़ाया जाता था, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड दैट. तो रिमेंबर दीज फैक्ट्स ऑल्सो. देखिए एंशिएंट एंड मिडाइवल में ये चीज़ आपको याद रखनी दैट यू शुड नो अबाउट द फैक्ट्स. फैक्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. ओके, सो yes, he was a pioneer of rock cut architecture amongst the Pallavas. Okay, ये भी याद रखिएगा, pioneer of rock cut architecture. The 5 celled cave temples at Pallavaram was also built during the reign of the Kokarneshwara temple. Okay, so Kokarneshwara temple Pallavaram में जो है वो भी इन्होंने ही बनाए थे. So remember this fact also. And he made Kudi Malai inscription. His paintings are found in Satnavasal cave, Tamil Nadu. ये सब फैक्ट्स जो आप इनके रिलेटेड याद रखिए. So any of the questions may be asked about this. But most important king was this Narasimhavarman I. He was also called as Malla. He was called by the name Mahamalla. Mahamalla. Remember this name? He was called by the name Mahamalla. यहाँ पर देखिए महाबला. वी डिस्कस वाई. महेंद्र वर्मन का ही की तरह ही वॉज टू मच इनटू दिस आर्ट, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स स्पेशली. सो ही ऑल्सो completed the work of Mamallapuram. Mamallapuram is the old name for Mahabalipuram. याद रखने का. इन्हीं के रेंग में what we see that Pancharathas temple was constructed, which is a rock cut temple in UNESCO temple in Mahabalipuram. इन्हीं के रेंग में बना था. Okay, Pancharatha temple. So ये Pancharatha जो temple है, if you have seen, it was also displayed that during the Chinese visit. यहाँ पे 5 रथ बने हुए हैं. Each रथ actually
each rath, about these 5 raths, जितने भी 5 रथ हैं, they are related to Pandavas. Okay, ये चीज़ याद रखिएगा. All the 5 रथs are somehow related to the Pandavas. जो पहला रथ है, the first rath is called Dharmaraj Rath. Okay, it is dedicated to Yudhishthir. Second, if it is not mentioned in the slides, आप नोट कर लीजिए, maybe it is not mentioned. Okay, so 5 रथ जो हैं पंचरथा टेम्पल के, they all somehow resemble they are dedicated to the we can say Pandavas. So 5 रथ में पहला रथ जो है, it is called Dharmaraj Rath. It was dedicated to Yudhishthir. Second rath was called Arjun Rath. Third rath is Bhim Rath. Fourth rath is dedicated to 2 brothers, Nakul and Sahdev. And the 5th rath is Draupadi Rath. Okay, remember this fact. ठीक है. अब देखिए, पुल्ला सेकर ने हराया था इनके फादर को, महेंद्र वर्मन को, and he was killed in that war. It is said that he was killed in that war. He avenged his father's death. ओके, तो ये अटैक करते हैं, पुल्ला सेकंड को हराते हैं 642 AD में, कैप्चर करते हैं बदामी का एरिया, चालुक्यंस का जो कैपिटल था बदामी. ओके, एंड इसके बाद इनको टाइटल मिल जाता है वतापी कोंडा और महामल्ल. ओके, सो 2 टाइटल्स इनके याद रखिएगा. वतापी कोंडा, दैट मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ द वतापी, और एंड महामल्ल. रिमेंबर दिस फैक्ट. एंड ही कम्प्लीटेड द महाबलीपुरम. पंचरथा टेम्पल ने बताया डेडिकेटेड, किस से डेडिकेटेड है. इन्हें महामल्ला इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट रेसलर. ओके, सो महामल्लापुरम, दैट इज महाबलीपुरम, इज नेम्ड दस आफ्टर हिम. 640 में इन्हीं के कोर्ट में चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग आते हैं, कांचीपुरम इनके कोर्ट में आते हैं. ही वॉज लाइक हिज फादर ऑल्सो, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा. अपार, ओके, Apar, Sithundar and Tribhuvan Samundar lived during his reign. These are the saints, Bhakti saints. Narasimhavarma also claimed to be one of the 12 kings. ये ऐसे इंडियन के ऐसे 12 किंग्स में आते हैं, नरसिम्हन 1, जो कभी भी नहीं हारे. So there are only 12 kings in Indian history who have never been defeated. Okay, and Narasimhavarman is one of those. Okay, he is one of those. Then इसके बाद what we have, yes, ये important चीज़ है, that he was succeeded by his son Narasimhavarman II. He is also important. Okay, ये भी बहुत important है. क्यों? Because इनके टाइटल्स के करके. He is also known as राज सिम्हा पलवा, okay, और कलर सिंगा नारायण, यानी one who is a loyal to the crowd of evil kings. ये 2 टाइटल्स इन्हें मिले थे. वाई इज ही इम्पोर्टेंट? बिकॉज जो शो टेम्पल है और इसवरा टेम्पल है या मुकुटुंडा टेम्पल्स हैं महाबलीपुरम में, एंड मोस्टली जितने भी, इफ़ यू सी, जितने भी आपके महाबलीपुरम के जितने भी टेम्पल्स होंगे, दे 90% चांसेस दे आर लिंक्ड विद दिस पल्लवास. तो अगर आपको कहीं एग्ज़ाम में आता है महाबलीपुरम के कोई टेम्पल से, 90% आप पल्लवास पैकिंग करिए. ओके, सो ही बिल्ड मेनी टेम्पल्स. ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, देयर वाज ए संस्कृत स्कॉलर कॉल्ड दंदिन, ओके, दंदीन, जो इनके कोर्ट में थे, इनके कोर्ट पोइट थे. एंड ही बिकॉज इनकी नेवल माइट बहुत ज़्यादा थी पल्लवास की, लाइक चोलास, सो दे ऑल्सो एक्सचेंज्ड एम्बेसडर्स विद चाइना. ओके, ये भी याद रखिएगा. he was also like his grandfather, great grandfather, he was also a dramatist, a poet, and he wrote many poems in the Sanskrit language. अब जो इन्होंने plays लिखे हुए हैं, they are mostly, they have been mostly based on the themes for Ramayana, Mahabharata, Puranas. Okay, these are all the themes जिस पे वो based है. Then he was succeeded. अब देखिए नंदीवर्मन 2 के बाद the Pallavas का the reign था, it started declining. Okay, अब इसके बाद it started declining. What we have Nandivarman 3 now. Okay, so he was the son of the Dantivarman and grandson of Nandivarman II. Okay,
So he made alliance with the Rashtrakutas and the Gangas and defeated the Pandyas at the Battle of Teluru. ये बात याद रखिएगा, who defeated Pandyas at the Battle of Teluru? It was Nandivarman. ये फैक्ट याद रख लीजिएगा. Then we have last Pallava king Parajita Varman. Okay. यहाँ से ही फाइनली, जैसे हम तो डूबे हैं सनम, इससे तुमको भी ले डूबेंगे. सेम थिंग हैपेंड हियर. ये तो डिक्लाइन पे थे, पल्लवास वेर ऑन डिक्लाइन, बट अपराजिता ने अपने साथ साथ ही किल्ड वरगुणवर्मन, जो पांड्यस के लास्ट किंग थे, वन ऑफ द लास्ट किंग्स थे, उनको हरा के तो पांड्यन किंग को डिक्लाइन हो गया इनके अंडर. एंड ही समहाउ बीइंग द लास्ट किंग, इन्होंने पांड्यस के भी लास्ट किंग को वॉर में हराया. एंड ही वॉज देन डिफीटेड बाय चोलास. आदित्य चोला इनको हराते हैं एंड फाइनली their power comes to an end. Okay. एंड अब थोड़ा सा पल्लवास के ऊपर देख लेते हैं. व्हाट डज दिस मीन? पल्लवा किंग्स जो थे अपने आप को डिसेंडेंट ऑफ द गॉड ब्रह्मा समझते थे. दे थॉट कि वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द गॉड ब्रह्मा. एंड इनके ऑफिशियल्स जो रिकॉर्ड होते थे, दे वेर इन द पल्लवा, इन द संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज. ओके, संस्कृत, प्राकृत एंड इन तमिल लैंग्वेज. एंड दे आर द मेन पर्सन्स कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर से शिफ्ट किया जब स्टोन टेम्पल्स की ओर, दे वर द मेन फोर्स बिहाइंड इट. एज वी नो इन द एंशिएंट, इन स्पेशली द साउथ इंडिया, वी हैड रॉक कट टेम्पल्स. वी हैड रॉक, लार्ज रॉक होता था. ओके, इसको काटा जाता था एंड देन ए टेम्पल वॉज मेड इन इट. ओके, इसलिए इफ़ यू सी, कहीं ना कहीं जो द टेम्पल्स ऑफ द साउथ, उनकी शेप कुछ ऐसी होती है. They are given the shape like this because in history, ancient history में अगर हम देखेंगे, they were the rock cut temples. अब rock cut temples से present जो stone temples की ओर जो आए, this was the Palvas, under the Palvas. And as we saw, मैंने आपसे कहा अपार सैंड थे, शेविज्म थे, शेविज्म इनके अंदर प्रोग्रेस किया. सो बस इनकी जो सोसाइटी थी, it was a transition. ओके, सोसाइटी थी इनकी. देवर भक्ति सेक्स लाइक अलवर्स एंड नारायणस इनके अंडर इवॉल्व हुए. लेकिन एक रीज़न ये भी था कि अलवर्स एंड नारायणस एंड द भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुई था, तो उसकी कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिच था यहाँ पे. ओके, शिव एंड विष्णु वर वर्शिप, बट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म समहाउ लॉस्ट द प्रोमिनेंस अंडर. ओके, दे लॉस्ट द प्रोमिनेंस अंडर. So Pallavas we studied. I have discussed all the important points जो आपके एग्ज़ाम के लिए important है. Now we go to the Chalukyas, जो कि अब सेकंड आपकी डायनेस्टी है फ्रॉम साउथ इंडिया. कौन से पीरियड में? 650 to 750, just when India was undergoing the phase of feudalism. Okay, so where did the Chalukyas rule? यहाँ देख लीजिए. Chalukyas actually ruled from टू प्लेसेस. अगर आप चालुक्यस देखेंगे, चालुक्यस एक्चुअली दो जगह से माने जाते हैं. वन, चालुक्यस ऑफ बदामी या वतापी, यहाँ वाले, दिस इज़ वन. एंड चालुक्यस ऑफ वेंगी, दिस इज़ टू. अब ये चालुक्यस कैसे दो स्ट्रीम में बनते हैं, डेट आई विल डिस्कस विद यू. बट अभी मैं इतना बता दूँ, देयर वर एक्चुअली टू चालुक्यस. चालुक्यस ऑफ बदामी, चालुक्यस ऑफ वेंगी, पर इनिशियली एक ही था. एंड अगर आप चालुक्यस का एक्सटेंट देखेंगे एम्पायर का, सो वेस्टर्न कोस्ट भी यही कंट्रोल करते थे, ईस्टर्न कोस्ट भी यही कंट्रोल करते थे. सो दे वर वन सच किंगडम जो कोस्ट टू कोस्ट रूल करते थे, याद रखिए. ओके, एक्चुअली the Chalukyas, okay, they were the feudatories. Okay, ये feudatories थे बदामी के किंग. ओके, अब हुआ क्या? they were actually the feudatories of Kadambas. ये चीज़ याद रखिएगा, Kadambas of बदामी. अब क्रोनोलॉजी थोड़ा समझते हैं कि महाराष्ट्र और विदर्भा रीजन में हो क्या रहा था. ओके, लेट्स ऑल डिस्कस कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा था. this region, what was happening in this region. Okay, so let's discuss it. इस रीजन में हो ये रहा था कि सबसे पहले it was ruled by Satavahanas. एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर देख लीजिएगा, I discussed Satavahanas. Then Satavahanas, they were overthrown
by Wakatas. Okay, Wakatas in overthrow करते. Okay, initially this region was ruled by Satavahanas. फिर इन्हें वटाकास जो है रूल करते हैं. फिर इन्हीं के वटाकास की ही एक फ्यूडिटरीज थी कदम्बास. ओके, जैसे जैसे फ्यूडलिज्म हो रहा था, आपको मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया कैसे बड़े एम्पायर्स की डिसइंटीग्रेशन होती है फ्यूडलिज्म के करके. एंड दीज कदम्बास बिकेम द किंग ऑफ बदामी. ओके, लेकिन ये कदम्बास भी बाद में दे वर ओवरथ्रोन बाय द चालुक्यास ऑफ बदामी, या बदामी को बतापी भी कहा जाता है. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड. जैसे मैंने कहा, देयर आर टू ऑफशूट्स ऑफ चालुक्यास ऑफ बदामी एंड चालुक्यास ऑफ वेंगी. यहाँ पर मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ. लेट मी रब इट. यस, देखिए, चालुक्यास ऑफ बदामी एंड चालुक्यास ऑफ वेंगी. अब पहले तो एक ही था. हाउ डिड इट गॉट स्प्लिट इनटू टू? दो कैसे ब्रांचेस बन गई? स्प्लिट तो हुए लेकिन ब्रांचेस बन गए. पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द चालुक्यास ऑफ बदामी. ओके, इन्हीं से सेकेंड स्ट्रीम निकलती है कल्याणी वाली. आई विल टेल यू हाउ. इट वॉज फाउंडेड बाय जयसिम्हा. सो चालुक्यास ऑफ बदामी वॉज फाउंडेड बाय जयसिम्हा. जयसिम्हा वॉज हिमसेल्फ ए फ्यूड ऑफ कदम्बास. किसके फ्यूड थे? कदम्बास के. सो कदम्बास के फ्यूड्स थे. जैसे जैसे कदम्बास जो है वीक होता गया, ही अटेंड द पावर और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते थे. देन इनको सक्सीड करते हैं जयसिम्हा को इनके सन पुलसेकन. ओके, ही इज़ द वन हु स्टार्टेड वैदिक सेक्रीफाइसेस लाइक अश्वमेधा. ओके, अश्वमेध याजना. ओके, तो वो इन्होंने ही स्टार्ट किए. देन इनके आते हैं चालुक्यास ऑफ बदामी के आते हैं इनके बेटे पुलसेकन वन के. पुलसेकन टू वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग. सो ही से पुलसेकन टू की एक पोर्ट्रेट सा दिया हुआ. सो एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुलसेकन टू के बारे में आता है कि जो आइहोल इंस्क्रिप्शन है, इट इज़ रिलेटेड टू हिज अचीवमेंट्स एंड विक्ट्रीज. याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम आपका पूछ लेता है कि आइहोल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू. Okay, it is related to victories and achievements of Pulasek II. Okay, अब ये आइहोल इंस्क्रिप्शन लिखी किसने थी? It was written by his court poet रवि की थी. याद रखिएगा ये चीज़. Okay, so it was written by his court poet रवि की थी. अब यहाँ पर देख लीजिएगा. I told you कि हर्षवर्धन was a powerful king. In fact, the last powerful king that Hindus had. Okay, so he belonged to Pashupati dynasty. अब यहाँ देख लीजिए. Okay, so let us check the. Just let me show you the map. यहाँ मैप देख लीजिए आप. Okay, अब there are Chalukyas. Okay, I told you that he belonged to Pashuputis. ओके, सो ही बिलोंग टू पशुभूतीज. ये पूरा रीजन आपका जो ये दिस एम्पायर ऑफ हर्षा, ये वाला, ये दिस एम्पायर ऑफ हर्षा अंडर पशुभूतीज. ओके, सो इट वाज अंडर हर्षा. दिस वाज अंडर द पुलसेकन टू. ये पूरा एम्पायर पुलसेकन टू का था. अब यहाँ देखते हैं. ओके, so what happened? Pulasekan II defeated हर्षवर्धन. हर्षवर्धन साउथ में आके कैप्चर करना चाहते थे टेरिटरीज. यहाँ पे आके साउथ में आके अपनी टेरिटरीज कैप्चर करना चाहते थे. बट ही वॉज डिफेटेड बाय पुलसेकन II. पुलसेकन II उन्हें हरा देते हैं. दस पुलसेकन II बिकम्स द लॉर्ड ऑफ द साउथ. और इनको टाइटल मिलता है दक्षिण पथ सवार. ओके, दक्षिण पथ सवार. दस ही बिकम्स अ मोर पावरफुल किंग. विक्ट्रीज और अचीवमेंट्स कहाँ पर इनकी मेंशन है? आइहोल इंस्क्रिप्शन में. किसने लिखी है वो? रवि कीर्ति ने. पर्शियन किंग को इन्होंने अपनी एम्बेसडर भी भेजे हुए थे. डैट इज डिपिक्टेड इन द अजंता केव्स.
ओके, सो अब नॉर्थ में तो उन्होंने हर्षा को हरा दिया था ना, ही वांटेड टू कम टू द साउथ. ओके, अब साउथ में हु वाज द लीडिंग डायनेस्टी? इट वाज द पल्लवास. पल्लवास के अगेंस्ट ये 2 एक्सपीडिशंस जो है लगाते हैं. ओके, सो ही स्टार्ट्स 2 एक्सपीडिशंस अगेंस्ट द पल्लवास. फर्स्ट एक्सपीडिशन वाज सक्सेसफुल. ओके, महेंद्र वर्मन दैट आई मेंशन्ड यू देयर, उनको ये हराते हैं, वेंगी उनसे ले लेते हैं. ओके, वेंगी, अब यहाँ देखिए, लुक एट द मैप, दिस वेंगी रीजन हेयर एक्चुअली ये पल्लवास के पास था पहले, बट महेंद्र वर्मन को हराते हैं जब पुलसेकन 2 इस वेंगी को स्नैच कर लेते हैं. ओके, अब वेंगी को जब ये स्नैच करते हैं, ये वेंगी को अपने ब्रदर को दे देते हैं जिसका नाम था विष्णुवर्धन. ओके, ये उसको वेंगी का किंग बना देते हैं. कोई डिवीजन नहीं था दोनों में, जस्ट उसको एक इंडिपेंडेंट किंग बना देते हैं और उसे कहा जाता है चालुक्यज ऑफ वेंगी. सो दिस इज हाउ 2 ब्रांचेस बनती है, चालुक्यज ऑफ बादामी एंड चालुक्यज ऑफ वेंगी. सेकेंड जो एक्सपीडिशन थी इनकी, देन ही अगेन ट्राइड कि मैं पल्लवास को हराऊं. इट वॉज अ फेलियर. महेंद्र वर्मन के बेटे, तब तक नरसिम्हा वर्मन वॉज अ किंग, ही किल्ड पुलसेकन 2, क्योंकि उन्होंने महेंद्र वर्मन को पहली एक्सपीडिशन में उन्हें मारा हुआ था, सो ही अवेंज्ड हिज फादर्स डेथ देयर. ओके, सो नरसिम्हा वर्मन, इसके बाद उनको टाइटल मिलता है वतापी कोंडा, डैट मीन्स कॉन्करर ऑफ द वतापी. ओके, रिमेंबर दिस फैक्ट. ये मैंने आपको वहाँ बताया था व्हेन वी डिड द पल्लवास की नरसिम्हा वर्मन टुक द टाइटल वतापी कोंडा, डैट मीन्स कॉन्करर ऑफ द वतापी. पुलसेकन के बाद वी हैव विक्रमादित्य 2. इन्हीं टाइम में व्हाट वी डिड कि इन्होंने फादर का बदला लेने के लिए ही 2 रिपीटेड इन्वेजन्स करते हैं पल्लवास को. नंदीवर्मन 2 को ये हराते हैं और इन्होंने टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री ही रोट एन इंस्क्रिप्शन इन कैलाशनाथ टेम्पल इन कांचीपुरम. तो पल्लवास का कैपिटल जो कांचीपुरम था, वहाँ के टेम्पल दैट वी डिस्कस्ड इन द महेंद्र वर्मन, इफ़ यू रिमेंबर दिस कांचीपुरम कैलाशनाथ टेम्पल, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखते हैं. ही ऑल्सो चेक्ड द अरब इन्वेजन्स. और दांती दुर्गा जो है वो इनके अंडर ही, दांती दुर्गा प्रोमिनेंस बनाते हैं. ओके, दांती दुर्गा एक फ्यूडल थे, वो इनके विक्रमादित्य के टाइम पे इमर्जन बन जाते हैं. यही दांती दुर्गा बाद में कीर्तिवर्मन को हराते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. ओके, सो यहाँ से एंड हो जाता है आपके चालुक्यस के. ओके, सो चालुक्य की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी? ऑफकोर्स मोनार्कियल थी. दे टू हैड द हेरिडिटी लॉ, फिक्स नहीं था. इनका भी हेरिडिटी लॉ जो था फिक्स नहीं था. एंड 10 वॉर ऑफ सक्सेशन यहाँ पे थी. ओके, वी ऑल्सो सी कि यहाँ के जो किंग्स थे, दे हैव हेल्ड द टाइटल राइट परम भक्त राणा, महाराजाधिराजा, ओके, परमेश्वरा, they have held the titles like this. Okay, and king was the most powerful central body, central fact, central piece. He was assisted by Mantri Mandal, that means the council of ministers, and high officials जो थे इसमें. Okay, उन्हें कहा जाता है, like we have महासिंध विग्रह का, this is the high official जो कि बार बार mentioned है inscription में. सो यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑफिशल्स चालुक्यस के जो मेंशन है, डैट इज बालादी कीर्ति, दंदनायका, ओके, महाप्रचंदा, दंदनायक एंड एपिग्राफ्स. ओके, एंड व्हेन वी स्टडीड अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ओके, सो इनके अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर इवॉल्व करता है वसेरा डेक्कन स्टाइल का. दे बिल्ड लाट खान टेम्पल, शिवा का टेम्पल है, मुगुती जैन टेम्पल एंड बदामी केम टेम्पल, हिंदू प्लस जैन टेम्पल है, दोनों का टेम्पल है. दे बिल्ड दीज. ये देखिए बदामी कैन टेम्पल, बतूना भूतनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये भी इन्होंने बनाया. दीज आर सम अदर फैक्टर्स जो इन्होंने बनाया. देयर इज आल्सो बदामी केव टेम्पल्स. तो इट इज ए वी कैन से जैन प्लस हिंदुइज्म केव, बदामी जो केव टेम्पल्स हैं. सो केव 1 इज शिवा, नटराजा, विष्णु एंड Trivikrama. Largest third cave which is dedicated to Vishnu, and fourth cave is dedicated to Jainism.
And this is the UNESCO Patakadal is a UNESCO World Heritage Temple. All these temples are situated in this. ये सब Chalukyan temples हैं. Okay, so after this, what is remaining is the Pandyas. Okay, so what I would be doing, I would be doing the Pandyas in a separate video. Okay, Pandyas को मैं एक separate video में कर दूँगा. So okay, so thank you. That's all for this video. Thank you.